Good morning. In the last turn, we have discussed about the properties of the definite integral. So many properties we have discussed. Now, we will start the questions basis on that properties. Just you see one of the question. -1 to 1 fx dx, where fx is 1 minus 2x for x less than or equal to 0 and 1 plus 2x for x greater than 0. Okay. Certainly this function is continuous. Continuity में आप देखे होंगे x equal to 0 पर this function is continuous. This is the linear. This is also linear. So far less than 0 and greater than 0 also it is continuous. Means directly I can say the function is continuous everywhere. Fx is not same for -1 to 1, you have seen. Fx is not same for -1 to, within this interval. -1 to 0, the function is this one. For 0 to 1, function is this one. Okay? Means the function has the different values at different within the given intervals. So, where the function changes, at x is equal to 0, the function is changed. Means the I is -1 to 1 fx dx. Apply that formula. A to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx. What is the c? This is the important point. C is the number where the function will change. Function will change at x equal to 0. Means -1 to 0 fx dx plus 0 to 1 fx dx. Okay? Why 0? This is the important point. Let us suppose for x less than or equal to half, x greater than half, then this will be -1 to half, half to 1. Okay? At 2 by 3, then -1 to 2 by 3, 2 by 3 2. Means C, I will take the value where function will change. Now for -1 to 0, for all the values for -1 to 0, the function is 1 minus 2x. So -1 to 0, 1 minus 2x dx. Plus for 0 to 1, the function is 1 plus 2x. 0 to 1, 1 plus 2x. Now it will be the easy things. Now you integrate. The integral of 1 is ax, integral of 2x is ax square, -1 to 0, plus x plus x square, 0 to 1. Put the upper limit, 0 minus 0, 0, minus. Put -1, -1, -1 का square, that is 1, -1 minus 1, plus upper limit 1 plus 1 minus lower limit 0. This is 2 plus 2, which comes 4. Means -1 to 1 fx dx. For this function, the answer is 4. Okay? So main thing, the use of a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx. What is the c? Just you will decide from the given function where the function will
change. The another question, 0 to 2, 0 to 2 mod of x square plus 2x minus 3 dx. 0 to 2 x square plus 2x minus 3. मॉड में पहले हम सिंपल वाला मॉड ले रहे हैं आपको. 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ mod 2x minus 1 dx. लीनियर फंक्शन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस mod विल चेंज. क्या हो जाएगा? At x is equal to 1, the value of mod will become 0. Means mod 2x minus 1 will be written as either it is 2x minus 1 or it is minus of 2x minus 1 for x greater than or equal to half, x less than or equal to half. Because mod x is x or minus x for x greater than 0, for x less than 0. This is the definition of mod. Mod x is a x when inside the mod is positive. Mod x is a minus of x when inside the mod is negative. तो x की जगह हम यदि mod fx लिख दें, mod of fx, तो either it becomes fx or it becomes minus of fx for fx is positive, for fx is negative. Okay? So from this one, mod of 2x minus 1 is splitted. The two values either the same as fx or minus of the fx. Where it is same as fx, when inside the mod is positive, means 2x minus 1 greater than or equal to 0, means x greater than half, then inside this is positive, so mod fx is a fx. When it is negative, x is less than half, then certainly it is negative, so minus half fx. Apply the same thing, 0 to half, mod 2x minus 1 plus half to 1 mod 2x minus 1. Okay? A to C, fx dx. C to B, fx dx. C is a half. Okay? But for 0 to half, means the value of x is less than half. For less than half, the fx become minus half 2x minus 1. Means I can write 1 minus 2x, 0 to half, 1 minus 2x dx plus half to 1, 2x minus 1. Because for value x lies between half to 1, the fx becomes 2x minus 1 only. Now it is just earlier question, x minus x square, limit 0 to half, plus x square minus x, limit half to 1. Okay? Now very easy. You put the values. Half minus 1 by 4, half minus 1 by 2 square, 0 पर 0 हो जा रहा है, plus 1 minus 1 that is 0, minus 1 by 4 minus 1 by 2. 1 by 4 minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 4, that is a 1 by 4 plus 1 by 4, the answer becomes half. Answer becomes half.
1 by 2 minus 1 by 4 is a 1 by 4. 1 by 4 minus 1 by 2 is minus 1 by 4, but minus is here. So plus 1 by 4, 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 by 4 means half. लीनियर फंक्शंस की बात मार्ड में किया मैंने, लेकिन यहां पर फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक. तो वी विल चेक इट, स्प्लिट दिस मार्ड. मार्ड हटाना कंपलसरी है, तभी हम इंटीग्रेट करेंगे. मार्ड कैसे हटे वो यक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा. ये एफ एक्स है पूरा. एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन mod एफ एक्स इज एफ एक्स ओनली. एफ एक्स इज लेस देन 0, देन mod एफ एक्स इज माइनस एफ एक्स. तो वी विल डिसाइड इट फर्स्ट. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कैन बी फैक्टराइज एज x प्लस 3 इंटू x माइनस 1. आई एम नॉट गोइंग टू फैक्टराइज, फैक्टर आप कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो x कॉमन x प्लस 3 माइनस कॉमन x प्लस 3, तो x प्लस 3 x माइनस 1. इट बिकम पॉजिटिव when both the factor are positive or both the factors are negative. तो इतना करने के बजाय हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे. जरा एक बार देख लें. 0, 1, 2, 3 रियल नंबर लाइन, -1, -2, -3, critical value are -3 and 1. What is the critical value? The value of x where f x becomes 0. -3 and 1. These are the critical value. बना दिया. You have seen that your real number line is divided into 3 parts. Your real number line is divided into 3 parts. One is less than -3. Other one is lies between -3 to 1, and next one is greater than 1. Next one is greater than 1. How we find the sign of f x? Choose any one of the part. तो सबसे आसान पार्ट होगा जिसमें 0 हो. ये 0 आ रहा है मिडिल वाले पार्ट में, -3 to 1 में. 0 फंक्शन में रख दीजिए. 0 रखने से निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब -3 to 0 में निगेटिव है. आगे अल्टरनेट आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा. रख के भी चेक कर सकते हैं. ग्रेटर देन 1, 2 रख दीजिए इसमें. 2 + 3 5, 2 - 1 1, पॉजिटिव. मैंने फॉर ऑल द वैल्यूज इट विल बी पॉजिटिव. फॉर ऑल द वैल्यू बिटवीन -3 to 1 आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. फॉर ऑल द वैल्यूज बिटवीन -3 to 1 इट इज नेगेटिव. Let us suppose -2 plus 3, that is a 1, -2 -1 -3. This is positive, this is negative, product becomes negative. तो बात क्लियर हो गई. अब आप फंक्शंस को देखें. हमको चाहिए 0 to 2 के बीच का. 0 to 2 के बीच में. तो 0 to 1 में निगेटिव है, 1 to 2 में पॉजिटिव है. 0 to 1 में निगेटिव है, 1 to 2 में पॉजिटिव है. इसका मतलब 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है. सो आई बिकम, लगा दीजिए द सेम वैल्यू. 0 to 1 mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 to 2 mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx. A to C, A is 0, C is 1. Y1 ये आपने देखा, 1 पर फंक्शन स्प्लिट हो रहा है. माने 1 से कम पर निगेटिव है, 1 से ग्रेटर पर यह पॉजिटिव है. इसीलिए C की वैल्यू हमने 1 लिया है. 0 to 1 में निगेटिव, तो mod एफ एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स. तो माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज 0 to 1. mod हट गया. अब 2x माइनस 3. ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट. mod ऑफ एफ एक्स इज ए माइनस एफ एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इट बिकम्स नेगेटिव. मीन्स 0 to 1 में
इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 की निगेटिव आ रही है, इसलिए माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया. बट बिटवीन 1 to 2 एफ एक्स बिकम पॉजिटिव, सो मॉड एफ एक्स इज एफ एक्स ओनली. तो 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx. अब आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया. आई जे माइनस आउटसाइड ही रह गया. एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 2x का एक्स स्क्वायर, 3 का 3x लाइज बिटवीन 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटरवल 1 to 2. Put the upper limit. Upper limit is 1 by 3 plus 1 minus 3. x की वैल्यू 1 रखा, 1 by 3 plus 1 minus 3. 0 पर पूरा 0 हो जाएगा, so I will not going to write. प्लस 2 रखेंगे, 8 by 3 plus 4 minus 6. 8 by 3 plus 4 minus 6 माइनस 1 रखेंगे, 1 by 3 प्लस 1 माइनस 3. 1 by 3 प्लस 1 माइनस 3. यहां देखें, 1 माइनस 3 इज ए माइनस 2. 1 माइनस 3 इज ए माइनस 2. माइनस 2 प्लस 1 by 3 दैट इज माइनस 5 by 3. यहां भी माइनस है, तो यह आ गया 5 by 3. फिर से देखें हमने कैसे किया. वैसे तो एलसीएम ले लेते 3, क्या जाता 1 प्लस 3 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, और यहां भी माइनस था, प्लस 5 by 3 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 8 by 3 दैट इज प्लस 2 by 3. ये बिल्कुल सेम है, 5 by 3 ही आएगा, देख ही रहे हैं. उसका भी माइनस 5 by 3 था, तो माइनस माइनस प्लस 5 by 3, 5 by 3 प्लस 2 by 3 प्लस 5 by 3, 12 by 3 दैट इज 4. द फाइनल आंसर इज 4. तो मॉड में लीनियर भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है. डायरेक्ट हमने क्वाड्रेटिक लिया, लीनियर वाले का ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए लीनियर में भी किया जा सकता था. क्वाड्रेटिक हरदम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आए हुए हैं, जैसा फंक्शन दिया हो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं. माने मॉड में तो हर हालत में आपको वही लगना है. ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई. ये तो देखिए 4 मार्क्स में आया ही क्वेश्चन है. 1 to 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx. ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ चुका है 2 साल पहले, बिल्कुल सेम न्यूमरल. पर ये 3 इंटीग्रेंट है. एक तो मॉड इसको लिख सकता हूं मैं 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉड x माइनस 2 dx प्लस 1 to 4 मॉड x माइनस 3 dx. The value of x lies between 1 to 4. For all the values lies between 1 to 4, mod x minus 1 is positive. x minus mod x minus mod तो हरदम positive. x minus 1 is positive. माने function is positive. Any values lies between 1 to 4, x minus 1 is positive. Okay? कोई भी वैल्यू लीजिए 1 और 4 के बीच में, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव आएगा x minus 1. तो mod fx becomes fx. mod fx become fx. तो ये एज इट इज हो गया 1 to 4 x minus 1 dx. यहां देखें
नहीं भाई, 1 पर निगेटिव है, 4 पर पॉजिटिव है। x की वैल्यू 1 रखने से निगेटिव आ रहा है, 4 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं ये थिंक ओवर करिए, पता करिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इज पॉजिटिव, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इज निगेटिव। x minus 2 is positive when x is greater than 2. x minus 2 is negative when x is less than 2. मैंने 2 is a critical value, तो इसमें हम दो पार्ट में बांट दें, 1 to 2 mod x minus 2 plus 2 to 4 mod x minus 2। यहां देखिए, यहां भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है। लेस देन 3 पर निगेटिव, ग्रेटर देन 3 पर पॉजिटिव, यानी यहां हम 1 to 3 अलग कर दें, 3 to 4 अलग कर लें। 1 to 3 mod x minus 3 dx प्लस 3 to 4 mod x minus 3 dx। ओके, अब तो mod हट जाए, तब हम इंटीग्रेट करें। 1 to 4 function was x minus 1 dx lies between x lies between 1 to 2, तो the function x minus 2 is a negative, तो आ जाएगा minus half f x, minus half f x means I can write it 2 minus x। for 2 to 4 function x minus 2 is a positive, तो एफ एक्स mod एफ एक्स इज एफ एक्स x minus 2 प्लस फॉर x lies between 1 to 3 function x minus 3 is a negative, तो माइनस एफ एक्स that is 3 minus x dx। for x lies between 3 to 4 function x minus 3 is always positive, so mod एफ एक्स इज एफ एक्स। अब तो ये ऑर्डिनरी बन गया भाई क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व कर लेंगे आप। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 1 to 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लाइज बिटवीन 3 to 4। फोर 16 by 2 8 minus 4 minus 1 by 2 minus 1 plus 2 4 minus 4 by 2 2 1 2 minus 1 by 2 4 16 by 2 8 8 minus 8 16 by 2 8 minus 8 2 4 by 2 that is 2 minus 4 plus 3 9 minus 9 by 2 minus 1 3 minus 1 by 2 plus 4 16 by 2 8 minus 12 minus 16 by 2 8 minus 3 for the 12 minus 3 9 by 2 minus 9 9 by 2 minus 9. This is 4 minus half to plus half. 4 minus 2 is a 2 minus 3 by 2. This is 0. 2 minus 4 minus 2 minus minus plus. 9 minus 9 by 2 9 by 2. 3 minus 1 by 2 5 by 2. 8 minus 12 minus 4, 8 minus 12 that is minus 4. This is 9 by 2 minus 9 that is minus 9 by 2. This become plus 9 by 2. Okay, whole number में पहले चेक करें। 4 plus 2 6 plus 2 8
-4 comes 4 या ये भी कर सकते थे 4 4 कैंसिल हो गया तो 2 + 2 4। फ्रैक्शन में आए, प्लस में देखिएगा 9/2 ये हो गया 9, 18/2 प्लस 1/2 दैट इज 19/2 माइनस 8/2 दैट इज 19 माइनस 8 11/2 प्लस 11/2 दैट इज 4 to the 8 प्लस 11 दैट इज फाइनल आंसर 19/2। ओके, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसमें हमने देखा कि देखिए 3 फंक्शन सबसे आसान यही दिखता है स्टूडेंट्स को। एक हम दूसरा मेथड इसका बता रहे हैं, जो ये तो क्लियर है, अलग अलग भी कर सकते थे, I1 I2 I3, I1 की वैल्यू 1 to 4 mod x - 1 लीनियर फंक्शन, 1 to 4 mod x - 2 लीनियर फंक्शन, सीधे सीधे 2 चेंज हो जाएगा। लेकिन हम तीनों को एक साथ भी करते हैं। इधर देखिएगा, फंक्शन वेरी हो रहा है 1 पर, 2 पर, 3 पर, क्रिटिकल वैल्यू आई 1 2 3 मीन्स fx इज इक्वल टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 में बी रिटेन एज। एक तो करिए x लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 लेस देन x लेस देन 2 एंड 2 लेस देन x लेस देन 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 4 पार्ट में बट गया। लेस देन 1 की बात ही नहीं करना है क्योंकि इंटरवल 1 to 4 है, तो पहला पार्ट हट गया। देख रहे हैं 1 to 4 में लेस देन 1 नहीं आएगा, तो हमने बांटा 1 to 2, 2 to 3 एंड ग्रेटर देन 3। 1 to 2 में if the value of x is lies between 1 to 2, then certainly this first term is a positive, that is x minus 1. If x lies between 1 to 2, then x minus 1 is a positive, so mod fx is fx only. If x lies between 1 to 2, then x minus 2 is negative, hence it becomes 2 minus x. Mod fx is a minus fx. Mod fx is a minus fx. Similar way, if x lies between 1 to 2, then x minus 3 is negative. So mod fx is a minus fx, means plus 3 minus x. X cancel, 2 plus 3 5, minus 1 4, that is minus x. ये आ जाएगा 4 minus x. Okay? For x lies between 1 to 2, the whole function fx become 4 minus x. For 2 to 3, x minus 1 is positive, so x minus 1. For 2 to 3, x minus 2 is also positive, so mod fx is fx, that is x minus 2, but it is 3 minus x. Mod fx is a minus fx, फिर x cancel. x, only x. For x greater than 3, all the functions are positive. X minus 1 also positive, x minus 2 also positive, x minus 3 is also positive. So it becomes 3x minus 6. 3 into x minus 2. ओके, अब आप इसको स्प्लिट कर दें 1 to 2 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3.
प्लस 2 to 3 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 plus 3 to 4 the same thing dx. For 1 to 2 this fx becomes 4 minus x. For 2 to 3 function is only x. For 3 to 4 function is 3 into x minus 2 dx. अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा. तो इसे 3 इंटीग्रेशन यहां भी है, लेकिन वैल्यू रखना थोड़ा आसान पड़ रही थी इसमें हमको, इसलिए आई विल प्रीफर दिस वे. Another question is mod cos x 0 to 2 pi. 0 to 2 pi mod cos x. Certainly the function is cos x 0 to 2 pi माने 1 full cycle. पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है. आप जानते हैं cos x का जो कर्व है वो ये बनेगा. दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई. y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos x का ये फंक्शन है. मीन्स cos x इज ए पॉजिटिव फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पोर्शन निगेटिव है. माने पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई जो रेड कलर से दिख रहा है के बीच में cos x की वैल्यू निगेटिव है. तो वी विल चेंज इट 0 टू पाई बाई 2 mod cos x प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 mod cos x प्लस 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई mod cos x. क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 में फंक्शन cos x पॉजिटिव है, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में फंक्शन cos x निगेटिव है, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में फंक्शन cos x फिर से पॉजिटिव है. तो एफ एक्स इज ए पॉजिटिव, सो mod एफ एक्स इज एफ एक्स ओनली. मीन्स 0 टू पाई बाई 2 ओनली cos x. वाई mod cos x माने mod ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स. बट पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में फंक्शन cos x निगेटिव है, सो mod एफ एक्स इज ए माइनस ऑफ एफ एक्स. तो यहां गया माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 cos x प्लस 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई. फिर फंक्शन आपका पॉजिटिव है, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई mod एफ एक्स क्या बनेगा cos x ओनली. इंटीग्रल ऑफ cos x इज ए sin x. इंटीग्रल ऑफ cos x इज ए sin x. 0 टू पाई बाई 2 minus again integral is sin x only, 3 pi by 2 to नहीं pi by 2 to 3 pi by 2, फिर sin x
3 pi by 2 to 2 pi. Sin pi by 2, that is a 1. Sin 0 is a 0. Sin 3 pi by 2 minus 1 minus sin pi by 2, that is 1. Sin 2 pi 0 minus sin 3 pi by 2 minus 1, so it comes plus 1. तो आप देखिए आंसर आ गया 4. 1 plus 2 plus 1. 1 minus 0 1. ये आया माइनस 2, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 plus 2 plus 1 becomes 4. तो आंसर मॉड साइन एक्स भी 4 ही आएगा, उसे आप चेक कर लेंगे. वहां फंक्शन 0 to पाई और पाई टू 2 पाई हो जाएगा. क्यों? 0 to पाई में साइन एक्स पॉजिटिव एंड पाई टू 2 पाई में साइन एक्स निगेटिव. बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये बनता है 2 पाई पाई 0. ये देखिए 0 to पाई में पॉजिटिव, पाई टू 2 पाई में निगेटिव, 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स, स्प्लिट किया 0 to पाई मॉड साइन एक्स प्लस पाई टू 2 पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स. फॉर 0 to पाई, फॉर 0 to पाई the value of fx is a positive, so mod fx is a fx only. 0 to pi only sin x plus pi to 2 pi negative, तो मॉड साइन एक्स इज ए माइनस साइन एक्स, तो यहां पर माइनस आ गया पाई टू 2 पाई. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज ए माइनस कॉस एक्स 0 to पाई. दिस कम्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस पाई टू 2 पाई माइनस cos पाई माइनस cos 0 प्लस cos 2 पाई माइनस cos पाई. cos पाई इज ए माइनस 1, cos 0 इज ए 1, cos 2 पाई इज ए 1 माइनस cos पाई इज ए माइनस 1. यह आ गया 2 प्लस 2 कम्स 4. इसका भी आंसर आपका 4 ही होगा, चाहे 0 to 2 पाई cos x हो मॉड में, चाहे 0 to पाई sin x हो मॉड में, दोनों की वैल्यू 4 ही होती है. बशर्ते वैल्यूज भी याद हो आपको, कब प्लस कब माइनस. उसके लिए मैं ये देखिए cos आड पाई, आड नंबर इंटू पाई, हरदम -1 होगा. cos इवन पाई ये 1 होगा, माने cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 7 पाई -1, cos 13 पाई -1, cos 18 पाई 1. इन्हीं का ज्यादा यूज होता है. cos आड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, आड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 ऑलवेज 0. cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 7 पाई बाई 2 0, cos 19 पाई बाई 2 0. इवन पाई बाई 2 इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो पाई वाले टर्म में आ जाएगा. साइन n पाई ऑलवेज 0,
साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जीरो, साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 13 पाई जीरो, साइन 19 पाई जीरो, ऑलवेज साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज जीरो. साइन 4k plus 1 pi by 2, 4k plus 1 pi by 2 is a 1, and sine 4k minus 1 pi by 2 is a minus 1. K is any integer. Sine 4k plus 1 pi by 2, मैंने जो भी पाई बाई 2 से नंबर मल्टीप्लाई है, 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर आए, 1 रिमाइंडर आए तो समझिए 1 होगा. यदि 3 रिमाइंडर आए तो -1 होगा. 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 आए तो समझिए -1 होगा. जैसे साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 7 पाई बाई 2 -1, साइन 17 पाई बाई 2 +1, 4 4 द 16 +1. ओके, इतने से क्योंकि पाई और पाई बाई 2 पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया. या 8 मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 में भी किया जा सकता है. तो 8 मल्टीपुल में हमारे दो वैल्यूज आएंगी, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा. तो उसको लिख देता है -1 टू द पावर n. लेकिन ये आपको इजीली हमें बहुत काम पड़ेगा, इसलिए एक चीज जरूर बता दिया कहीं ना कहीं. तो मार्ट पर हमने, लेकिन एक और क्वेश्चन देखें मार्ट पर भी, भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. 0 to 3/2, 0 to 3/2 mod ऑफ x cos पाई x. वेरी गुड क्वेश्चन. x cos पाई x, यहां हमें देखना है. खैर x तो लाइज बिटवीन 0 to 3/2, माने ये तो हरदम पॉजिटिव होगा. पर साइन फंक्शन f(x) का साइन इस पर डिपेंड कर रहा है. किस पर? cos पाई x का. तो अभी मैंने ग्राफ बनाया था आपको cos x का, कि x की वैल्यू 3/2 तक है, माने हमको 3 पाई/2 तक की बात करनी है. 0 से 3 पाई/2, तो ये है हमारा पाई/2, ये है 3 पाई/2. तो ग्राफ इसका यूं आएगा. ठीक, ठीक है. तो 0 to पाई/2 पर पॉजिटिव, माने पाई x की वैल्यू 0 और पाई/2 के बीच में है. इसका मतलब x की वैल्यू हाफ है, तो यह पॉजिटिव होगा. तो इसे बदल दिया, 0 to हाफ mod ऑफ x cos पाई x dx प्लस हाफ टू 3/2 mod x cos पाई x. ये देखें, x की वैल्यू हाफ और 3/2 के बीच में है, तो पाई x पक्का है पाई/2 और 3 के बीच में है. ओके, माने पाई/2 3 के बीच में ये फंक्शन निगेटिव होगा, तो mod f(x) माइनस f(x) होगा. और 0 to हाफ के बीच में ये फंक्शन x cos पाई x पॉजिटिव होगा, तो mod f(x) होगा. आई बिकम 0 to हाफ x cos पाई x माइनस हाफ टू 3/2 x cos पाई x.
अब प्रोडक्ट रूल, इसके बाद प्रोडक्ट रूल। यक्स कास पाई यक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लें। यक्स कास पाई यक्स आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, माने ए और टी, तो ए पहले आता है इसलिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड कास पाई यक्स का 1/पाई साइन पाई यक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1/पाई साइन पाई यक्स dx 1/पाई यक्स साइन पाई यक्स माइनस 1/पाई कांस्टेंट बाहर किया, साइन पाई यक्स का इंटीग्रल, साइन ए एक्स का इंटीग्रल माइनस 1/a कास ए एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1/a माने 1/पाई कास पाई यक्स, तो इंटीग्रल आ गया 1/पाई यक्स साइन पाई यक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर कास पाई यक्स। इसे आप अलग से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि दो बार वही चीज करूं उससे अच्छा एक जगह हमने इंटीग्रेट किया और यहां वैल्यू रख दिया। आई इज इक्वल टू 1/पाई यक्स साइन पाई यक्स माइनस नहीं प्लस 1/पाई स्क्वायर कास पाई यक्स, लिमिट 0 to half. The same thing 1/पाई यक्स साइन पाई यक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर कास पाई यक्स, लिमिट इज हाफ टू 3/2। वैल्यू रखें पहले हाफ 1/पाई इंटू यक्स इज ए हाफ साइन π/2 पाई इंटू हाफ π/2 दिस इज 1। अपर लिमिट हो गई नहीं, अभी ये वाला बचा 1/पाई स्क्वायर कास π/2 इज ए 0, 0 रखा तो ये टर्म आ गया 0, 0 इंटू वट एवर दैट साइन 0 दैट इज 0 माइनस 1/पाई स्क्वायर cos 0 which is a 1 minus 1/पाई into 3/2 x की वैल्यू 3/2 sin 3π/2 remainder is 3 so its value is -1 plus 1/पाई square into sin 3π/2 is 0 minus lower limit 1/पाई into half into sin π/2 1 plus minus 1/पाई square cos π/2 that is 0। ठीक है, I become this term becomes π/2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 1/पाई स्क्वायर, यहां देखिएगा माइनस 3π/3 ऊपर आया -3 नीचे आया 2π 1 3 -1 -3 पाई इंटू 2 2π, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 माइनस 1/2π, यहां गलत लिख लिया मैंने भाई, ये है 1/2π, पाई नीचे है ऊपर नहीं है, 1/2π I is 1/2π minus 1/पाई स्क्वायर प्लस 3/2π प्लस 1/2π 1/2π 3/2π 1/2π
दैट इज 5/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर। 5/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर इज आवर आंसर। ओके, 5/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर, दिस वाज द। इसमें देखिए प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट रूल भी हमने पूछा, वो थोड़ा सा, और स्प्लिटिंग भी थोड़ी आसान नहीं थी। ये सोचना कि x तो r में 0 to 3/2 पॉजिटिव है, यहां हमें सोचना पड़ा। डिपेंड करेगा पाई x की वैल्यू पर। यदि पाई x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो निगेटिव। तो उससे हमें निकल गया कि x की वैल्यू हाफ और 3/2 के बीच में है तो निगेटिव, x की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में है तो पॉजिटिव। क्वाड्रेंट से डिसाइड करें। थीटा की वैल्यू पाई x, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थीटा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट माने 0 और π/2 के बीच में हो, पाई x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में हो, पाई x की वैल्यू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई x लेस देन आर इक्वल टू π/2 पॉजिटिव, π/2 लेस देन आर इक्वल टू थीटा पाई x लेस देन आर इक्वल टू 3π/2 निगेटिव। पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आ गया 1/2 लेस देन x लेस देन 3/2 पर निगेटिव। यहां से आया 0 लेस देन x लेस देन 1/2 पॉजिटिव, इसीलिए हमने 0 to हाफ पर पॉजिटिव और हाफ से 3/2 पर निगेटिव। ये स्टेप दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, ओरली भी डिसाइड हो जा रहा था, इसलिए हमने बहुत उस पर जोर नहीं दिया। एक क्वेश्चन देखिए, x 1 माइनस x टू द पावर n 0 to 1 dx। आ तो जाता है प्रोडक्ट रूल से भी। इसको ले लेते फर्स्ट, इसको सेकंड, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से देखिए ये बहुत आसानी से लग जाता है। क्या किया हमने, यूजिंग 0 to a fx dx is 0 to a fa minus x dx, 0 to a fx dx is 0 to a fa minus x dx। I becomes 0 to 1, x a is a 1 तो x replaces 1 minus x, 1 minus x into 1 minus 1 plus x। x को 1 minus x लिखा तो 1 minus 1 plus x पावर n, 1 minus x into x power n dx, 0 to 1 x power n minus x to the power n plus 1 dx। इंटीग्रेट हो गया, x पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 का x टू द पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2, 0 to 1 रख दिया, 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2, x इज 1, 1 पावर n प्लस 1 एनी पावर ऑफ 1 इज 1 तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 पावर n प्लस 2 अगेन 1 बाई n प्लस 2, 0 पर 0 हो जा रहा है, ये भी 0 ये भी 0 तो माइनस 0। एलसीएम आया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2,
ऊपर आ जाएगा 1, n plus 2 minus n plus 1, that is n plus 2 minus n minus 1, n cancel 1. तो फाइनल आंसर इज 1 upon n plus 1 n plus 2. इसी क्वेश्चन को देखिए मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा जनरल बना दे रहा हूं, 0 to a x into a minus x to the power n dx. माने 1 की जगह 2 हो सकता था, 0 to 2 x into 2 minus x power n हो सकता था, 0 to 3 x into 3 minus x power n. तो हमने ढेर सारे क्वेश्चन के बजाय ये ले लिया, 0 to a x into a minus x power n. The same formula I should apply again. 0 to a x को a minus x into a minus x, तो a minus a plus x whole to the power n dx. That is 0 to a minus x into x power n dx. मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to a x power n minus x to the power n plus 1 dx. इंटीग्रेट कर दिया, a x to the power n plus 1 upon n plus 1 minus x to the power n plus 2 upon n plus 2, limit is 0 to a. a रखा, a to the power n plus 2. Why a power n plus 2? a into a power n plus 1, that is a power n plus 1 plus 1 upon n plus 1 minus a power n plus 2 upon n plus 2. 0 पर तो 0 हो ही जा रहा है, a power n plus 2 कॉमन ले लिया, 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2, that is 1 upon n plus 1 n plus 2. I have discussed there, means a to the power n plus 2 upon n plus 1 n plus 2. आप इसे जरूर याद रखें. a की वैल्यू 1 थी, तो 1 पावर n plus 2, that is 1 upon n plus 1 n plus 2 आया आंसर. a की वैल्यू 2 होती तो आंसर आ जाता 2 पावर n plus 2 upon n plus 1 n plus 2. Sometimes n may be the numeral 2, हो सकता है पावर 5. क्वेश्चन आ गया 0 to 2 x into 2 minus x power 5 dx. अब one of the candidates who are knowing this formula, तुरंत उसने लगा दिया, देखिए 2 to the power 6 upon 5 into 6 into 7, n plus 1 n plus 2. a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5, 2 to the power 7, not 5, n plus 2 है ना, तो 7, 2 to the power 7 upon 5 plus 1, 5 plus 2, that is 7. एक 2 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 21, ऊपर आया 2 पावर 6, that is 64. 64 by 21 उसने डायरेक्ट आंसर लिख लिया. अदर कैंडिडेट विल सॉल्व इट. तो टाइम आपका बच जाएगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही एक फर्क पड़ता है कि कुछ चीजें जो जनरल हैं वो याद रहें तो हमें बहुत काम करती हैं. मीन्स 0 to a x into a minus x to the power n की वैल्यू a to the power n plus 2, उस पावर से 2 ज्यादा, a to the power मैंने जो अपर लिमिट है उसका पावर n से 2 ज्यादा, वही पावर नीचे मल्टीप्लाई होगा और वह एक कम, 7 into 6.
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, दोनों सेम ही हैं। log 1 प्लस टेन थीटा 0 to पाई बाई 4, ये तो याद रखें, पाई बाई 8 log 2, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। जीरो टू 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों सेम क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा कैसे सेम हो जाएगा वो। दिस इज वन यूजिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स ए 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए इज ए पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाएगा। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। थीटा की जगह माने वेरिएबल एक्स की जगह ए माइनस एक्स होना है, माने थीटा की जगह ए माइनस थीटा होना है। ए है पाई बाई 4, यहां लगाया टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। ए की वैल्यू पाई बाई 4, तो टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। 0 to पाई बाई 4 log 1 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 इज 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन पाई बाई 4 दैट इज फिर 1 हो गया डी थीटा, विच इज 0 to पाई बाई 4 log एलसीएम आ गया 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा दैट इज 2 ओनली। जीरो टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा। log 2 कांस्टेंट 0 to पाई बाई 4 डी थीटा माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन 2 करके 1 और 2 ऐड कर सकते थे यहां, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या मैं इसको आई लिख सकता हूं। आप देख रहे हैं दिस इज आई इक्वल्स log 2 इज ए कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रल माने 1 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में दैट इज थीटा 0 to पाई बाई 4 माइनस आई। देख रहे हैं ना बात, ये क्वेश्चन आई ही था, log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा 0 to पाई बाई 4, तो उसको मैंने आई लिख दिया। आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, दैट इज 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। सो i बिकम पाई बाई 8 log 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, समटाइम्स ये आ जाता है, ये बिल्कुल सेम है। लेट एक्स इज ए टेन थीटा, सो डी एक्स इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करूंगा हमें लिमिट बदलनी पड़ेगी। फॉर एक्स इज 0
वी गेट थीटा इज 0, क्योंकि 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज 0. फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, we get tan theta is 1 is equal to tan theta, theta is equal to pi by 4. So this will be reduced, I is equal to x is 0, then theta is 0. X is 1, theta is pi by 4. This is log 1 plus tan theta upon 1 plus tan square theta d theta dx is a sec square theta d theta, sec square theta d theta. तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बिकम द sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज कैंसिल विद sec स्क्वायर थीटा, और फाइनली बन जाएगा 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा. ये वही क्वेश्चन है. तो यह आएगा तो 3, ये आएगा तो 4. एक नंबर का काम बढ़ गया. सब्स्टिट्यूशन कि x की वैल्यू tan थीटा होने से dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये लिमिट बन जाएगी हमारी 0 to 1 वाली 0 to pi by 4. x is a 0, then theta is a 0. x is a 1, then theta is a pi by 4. dx था sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हम उससे तुरंत कैंसिल हो गया. वो डिनोमिनेटर का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर वाले sec स्क्वायर थीटा d थीटा था, sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल बन जाएगा 0 to pi by 4 log 1 प्लस tan थीटा. एक और क्वेश्चन देखें. 0 to pi by 2 x अपान साइन x प्लस cos x dx. x अपान साइन x प्लस cos x. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यदि आपका x आया है तो तुरंत पहले तो फार्मूला वही लगाएं. 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx. तब देखिए क्या बन जाएगा. ये I इज इक्वल टू 0 to a 0 to pi by 2 माइनस x अपान साइन पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x. और ये आ गया 0 to पाई बाई 2, न्यूमरेटर में पाई बाई 2 माइनस x, डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x. ये हो गया 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए cos थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए साइन थीटा. तो ये बन गया cos x, ये हो गया साइन x. ऐड किया 1 and 2, आई. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैं एक ही बार एलसीएम ले रहा हूं. cos x प्लस साइन x, ऊपर आ गया x प्लस पाई बाई 2 माइनस x dx. दैट इज पाई बाई 2 कांस्टेंट, x कैंसिल, 0 to पाई बाई 2 1 अपान cos x प्लस साइन x dx. जरा देखिएगा cos x प्लस, इसको tan में भी बदल के कर सकते थे. cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. साइन x को 2 tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2. अरे 1 प्लस tan स्क्वायर, वो एलसीएम आ जाएगा. चलिए उसी से कर रहा हूं पहले मैं, लेकिन आसान एक दूसरा मेथड ये था. cos x प्लस साइन x कैन बी रिटेन
√2 बाहर किया, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x, √2 cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4, cos a cos b प्लस sin a sin b, that is a √2 cos x minus π/4। जब कभी भी आपको a cos x प्लस b sin x मिले, a cos x प्लस b sin x, तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फार्मूला लग जाएगा cos a प्लस b का, या cos a माइनस b का, या sin a प्लस b का, या sin a माइनस b का। माने cos x प्लस sin x कैन बी रिटेन एज √2 cos x minus π/4। देन 2i इज इक्वल टू π/2 √2, ये वाला √2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, 0 to π/2 1 cos x minus π/4, that is sec π/2 √2, 0 to π/2 sec π/4 minus x। sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x, लेकिन यहां sec x नहीं है, sec ax प्लस b है, a की वैल्यू -1, तो sec ax प्लस b का इंटीग्रल 1/a log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b, ये लगेगा 1/a मीन्स 1/-1, ये माइनस कर दिया हमने π/2 √2 log sec π/4 minus x प्लस tan π/4 minus x log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b, ये मार्क है, वैल्यू है 0 to π/2, i माइनस π/4 √2, ये 2 भी नीचे आ गया, माइनस π/4 √2। अब देखिएगा क्या रखूंगा, π/2, x की वैल्यू रखनी है π/2, तो log sec π/4 minus π/2, that is a minus π/4 plus tan π/4 minus π/2, again it comes minus π/4, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट log sec π/4 प्लस tan π/4, 0 आ गया, π/4 minus 0 is a π/4 only, π/4 √2 log sec minus theta is a sec theta, that is sec π/4 is a √2, tan minus theta is a minus tan theta minus 1 minus log √2 प्लस 1, माइनस को अंदर कर दीजिए तो π/4 √2 log √2 प्लस 1 माइनस log √2 minus 1 log m/n log m/n π/4 √2 log √2 प्लस 1 अपॉन √2 minus 1, रेशनलाइज कर दीजिए √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, π/4 √2 log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
रूट 2 माइनस 1, रूट 2 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 1, 1 log m पावर n पाई अपान 4 रूट 2 इंटू 2 log रूट 2 प्लस 1 2 टू द 4। फाइनल आंसर आएगा पाई अपान 2 रूट 2 log रूट 2 प्लस 1। दिस इज आंसर। पाई अपान 2 रूट 2 पाई अपान 2 रूट 2 log रूट 2 प्लस 1। देख रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक टेक्निक थी जल्दी होने के लिए, इंटीग्रेशन में आसान हुआ, वैल्यू तो रखना इतना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। एक मैं दूसरा मेथड यहां बता रहा था यहां के बाद, वो भी देख लें जरा एक बार। ज्यादातर यदि cos x प्लस बी साइन एक्स केवल आता है तो हम उसको cos a प्लस बी या cos a माइनस बी या sin a प्लस बी या sin a माइनस बी में बदलने का प्रयास करते हैं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin x। एक बन जाता है cos, दूसरा हो जाता है sin। इसको यदि मैं tan में बदल दूं, पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 1 अपान cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। 2i j पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ रहा है देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, मीन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। लेट tan x बाई 2 इज ए t। tan x बाई 2 इज ए t। हाफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx is a dt, that is sec square x by 2 dx is a 2 dt। sec square x by 2 dx is a 2 dt, but limit also changes. For x is 0, we get t is a tan 0, that is 0. For x is a pi by 2, t is a tan pi by 4, that is t is a 1. Then 2i becomes pi by 2, 0 to 1. X is 0, t is 0. X is pi by 2, t is 1. Sec square x by 2 dx is a 2 dt upon 1 minus t square प्लस 2t। ये तो कैंसिल हो गया, उधर 2i था इधर 2dt था, 2 कैंसिल कर दिया हमने। पाई बाई 2 1 बाई क्वाड्रेटिक 0 टू 1 1 अपान 1 माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t। टी के कोफिशिएंट का हाफ, टी का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ 2 बाई 2 1 प्लस 1 माइनस 1 कर लिया dt, दैट इज पाई बाई 2 0 टू 1 1 अपान ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर t -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 तो यहां आ गया 2 माइनस t -1 का
whole square dt. Apply formula 1 upon a square minus x square dx 1 by 2a log a plus x upon a minus x 1 upon 2a. तो 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, a की वैल्यू है √2, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स की जगह t माइनस 1 और a की जगह √2. तो i इज इक्वल टू, ये तो पाई बाई 2 था ही, 1 अपान 2a 2√2, 1 अपान 2a दैट इज 2√2 log a प्लस x √2 प्लस t माइनस 1 √2 माइनस t प्लस 1, a माइनस x किया तो माइनस t प्लस 1. लिमिट वाज 0 to 1. पाई अपान 4√2 पाई अपान 2 to the 4 √2. अब अपर लिमिट log 1 रखा तो 1 माइनस 1 कट गया, केवल √2 अपान यहां भी कैंसिल हो गया, √2 माइनस 0 रखा log √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1. √2 दैट इज log 1, log 1 इज ए 0, तो ये माइनस आ गया बाहर, i इज ए माइनस पाई अपान 4√2 log √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1. यहां माइनस है, log m बाई n, माइनस log n बाई m कर दीजिए तो ये आ जाएगा पाई अपान 4√2 log √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1. फिर इसको रेशनलाइज कर दिया, वही पुराना आंसर, पाई बाई 4√2 log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस 1 दैट इज ए 1 log m पावर n पाई बाई 4√2 इंटू 2 log √2 प्लस 1 2 to the 4 पाई अपान 2√2 log √2 प्लस 1. पहले भी आपका आंसर यही था यदि याद हो तो, ठीक है ना. तो आपने देखा कि आई हैव डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस. अभी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे कल. आफ्टर दैट वी विल टेक द एरिया अंडर कर्व. उसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आना ही है. एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही है. तो tomorrow we will take some of the questions more, and after that at least we should introduce how we should find the area under the curve. Okay, thank you.